ایک مفصل اردو مضمون پیش ہے بعنوان سچ کا کٹنا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ موضوع کی تہ تک پہنچتے ہوئے تاریخی، سماجی، اخلاقی، نفسیاتی اور عملی پہلوؤں کو شامل کروں۔ حمد ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید کسی حوالہ قصہ خلاصے کی صورت میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ سچ کا کٹنا تعارف۔ دنیا میں ہر انسان کو سچ اور سچائی کی اہمیت کا ادراک ہوتا ہے، مگر عمل کرنا ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سچ بولنے سچ کا سامنا کرنے میں وہ تکلیف، نقصان، اکڑاہٹ محسوس ہوتی ہے جسے ہم محاورے میں سچ کا کٹنا وہ کہہ دیتے آوا۔ کٹنا صرف زبان کی نوک سے نکلنے والا درد نہیں، بلکہ یہ اندرون قلب ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی زندگی، تعلقات اور معاشرتی روایات پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ سچ کا کٹنا کیوں اور کیسے ہوتا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اور زندگی میں سچائی کو کس حکمت اور تحمل کے ساتھ اپنا سکتے ہیں۔ سچ اور اس کی نوعیت۔ سچ کی تعریف سیدھی سی لگتی ہے، حقیقت حقیقت پر مبنی بانمگر حقیقت کا دائرہ وسیع ہے۔ بعض اوقات سچ محض معلوماتی حقائق ہوتے ہیں، کبھی اخلاقی اصول ہوتے ہیں، اور بعض اوقات روحانی سچائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر قسم کے سچ کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طبی معائنہ کے نتائج یا کسی واقعے کا بیان معلوماتی سچ ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی غلط عادت کو چھوڑنا یا کسی برائی کی نشاندہی کرنا اخلاقی سچ ہے، اور یہی وہ سچ ہے جو اکثر کٹتا ہے۔ سچ کا کٹنا مفہوم اور نفسیاتی پہلو۔ جب کوئی سچ کسی فرد گروہ کے وقار، منافع، رواج یا خود فختگی کے خلاف جاتا ہے تو اس کے قبول کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی ہے: شرمندگی، دفاعی ردعمل، انکار، غضب، نفرت۔ اس ردعمل کا بنیادی سبب انسان کی اپنی شناخت، ایگو اور معاشرتی مقبولیت کا تحفظ ہے۔ جب سچ ان بنیادی عناصر کو خطرے میں ڈالتا ہے تو وہ کٹتا ہی محسوس ہوتا ہے، یعنی سچ سننے سنانے والے دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفسیاتی طور پر سچ کا سامنا کرنے والا شخص بھی دباؤ محسوس کرتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ رشتے خراب ہوں گے، ملازمت ختم ہو سکتی ہے، یا سماجی استحکام کھو دیا جائے گا۔ اسی طرح سچ بولنے والا بھی اس خوف کا شکار ہوتا ہے کہ اس کا محاسبہ تعدیب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ سچ کو پردے میں چھپاتے، مصلحت نہ توڑ مروڑ کر پیش کرتے، مکمل جھوٹ اختیار کر لیتے ہیں۔ سماجی نتائج۔ سچ کا کٹنا صرف ذاتی سطح پر محدود نہیں رہتا، اس کے سماجی نتائج بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں جب سچائی کو دبایا جاتا ہے یا سچائی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے تو بدعنوانی، ناانصافی اور جھوٹ کے پھیلاؤ کا راستہ کھل جاتا ہے۔ قوانین اور نظم و نسق کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ادارے میں کرپشن کی بات کی جائے اور اس کو دبایا جائے تو وہ ادارہ لہروں کی مانند گناہوں کو پھیلائے گا۔ اسی طرح سطح پر جب سچائی کا اظہار محرک ہوتا ہے تو جھوٹ، ڈبل سٹینڈرڈز اور رازداری رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسری طرف سچ کا احترام اور اس کے اظہار سے معاشرتی بھروسہ بڑھتا ہے۔ سچ پر مبنی ثقافت شفافیت، احتساب اور انصاف کو فروغ دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگرچہ سچ کا کٹنا وقتی طور پر تکلیف دہ ہوتا ہے مگر طویل مدت میں یہ معاشرے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اخلاقی اور مذہبی نقطۂ نظر۔ اکثر مذاہب اور فلسفیانہ مکتبی سچائی کو سب سے بلند اخلاقی قدر سمجھتے ہیں۔ اسلام، عیسائیت، ہندو مذہب میں سچائی کی تاکید ملتی ہے۔ سچائی کی راہ پر چلنا ایمان، شرافت اور انسانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہم مذہبی ہدایات عام طور پر سچ بولنے کے ساتھ نرمی، حکمت اور وقت کا بھی تقاضا کرتی آوین۔ ہر سچ کو ہر وقت بول دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ سچ کا کٹنا ایک امتحان کی صورت لے لیتا ہے۔ کیا سچی بات ظاہری سے زیادہ اہم ہے یا اس کے اثرات کم کرنے کا طریقہ تلاش کرنا؟ مذہبی حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کے ساتھ حسن سلوک اور حکمت کا استعمال ضروری ہے تاکہ نقصان کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ ہو۔ مثالی قصص اور حالات۔ سچ کا کٹنا زندگی کے چھوٹی بڑی مثالوں میں روزمرہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ایک استاد جب طالب علم کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ کٹتا ہے۔ ایک دوست جب دوسرے کی غلطی بتاتا ہے تو رشتہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ گھر میں جب والدین بچوں کی کچھ عادات کی نشاندہی کرتے ہیں تو فی فور لڑائی ہو سکتی ہے، مگر اگر یہی سچ حکمت محبت کے ساتھ پہنچایا جائے تو اثر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نشوونما اور بہتری کا راستہ کھل جاتا ہے۔ مشہور کہانیوں اور اخلاقی قصوں میں بھی یہی سبق ملتا ہے۔ وہ کردار جو سچ کا دامن تھامے رکھتے ہیں بعد میں عزت اور سکون پاتے ہیں، جبکہ جو لوگ عارضی فائدے کے لیے سچ سے روگردانی کرتے ہیں جلد بدنام
और अंदरूनी इस्तिराब का शिकार होते हैं। सच और अदल, तनाज़ुर और तवाज़ुन। एक पेचीदा मसला यह है कि कब सच बताना अदल के बराबर आता है और कब वो किसी इंसान को गैर ज़रूरी नुकसान पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का असरार उफ़शा करने से किसी मासूम को नुकसान पहुंच सकता हो तो क्या सच बताना अदल है? इस सवाल का जवाब सूरत-ए-हाल पर मुनहसिर है। बाज़ औक़ात एक खामोशी तकिया भी वो रास्ता हो सकता है जो ज़्यादा अदल और हमदर्दी का तकाज़ा करता हो। लिहाजा सच और अदल के दरमियान तवाज़ुन ज़रूरी है। अदल का तकाज़ा है कि जब सच इज़हार पाए तो इसका तरीक़ा ऐसा हो कि कम अज़ कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ और बेहतरी हासिल हो। इसीलिए इख़लाक़ी दानिशमंदों ने सच बोलने के अंदाज़, वक्त और मकाम की हैसियत पर जोर दिया। पेशा वराना और सियासती माहौल में सच का कटना। पेशा वराना दुनिया और सियासत में सच का कटना अमूमन खौफ और ताकत के निज़ा की शक्ल में दिखाई देता है। जब किसी मुलाजिम ने कंपनी में गलत काम, नाइंसाफ़ी दिखाई तो वो अंदरूनी दबाव का शिकार होता है कि आया वो इसको मंजर आम पर लाए या नहीं। इसी तरह सियासत में जब हक़ाइक़ अवामी मुफाद के लिए मंजर आम पर आते हैं तो ताकतवर हल्के दबाव डालकर उन्हें खामोश कराने की कोशिश करते हैं। इस तनाजुर में सच्चाई की हिफाजत के लिए शफाफियत के इदारों, सहाफ़ती आज़ादी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत पड़ती है। सच का कटना ज़ाती नमू का ज़रिया। दिलचस्प बात यह है कि सच का कटना अगर मुस्बत अंदाज में लिया जाए तो ये ज़ाती नशोनुमा का एक अहम ज़रिया बन जाता है। जब कोई फ़र्द अपने अयूब और ख़ामियों का सामना करता है वो अंदरूनी तब्दीली के लिए आमादा होता है। सच्चाई का ये अमल इब्तिदाई दर्द के बाद खुद शूरी बेहतरी और क़ुतन तस्मीम को जन्म देता है। इसलिए सच की कटाहट को महज मनफी समझना गलत होगा। ये एक दर्द शिफा भी साबित हो सकती है अगर कबूलियत और इस्लाह की नीयत हो। सच बोलने के बुनियादी उसूल रहनुमा खतूत। सच बोलना और सच का इजहार करने का एक हुनर भी है। चंद बुनियादी उसूल ज़ैल में दिए जा रहे हैं जो सच बोलने को मुअस्सिर और कम नुकसानदेह बना सकते हैं। एक, नीयत साफ रखें। सच बोलने की नीयत इस्लाह, बेहतरी या अदल होनी चाहिए, ना कि बदली या नफरत का आज़ार। 2, मौके का इंतखाब करें। हर मौके पर सच कहना मुनासिब नहीं, वक्त और जगह का इंतखाब हिकमत से करें। 3, हसन अंदाज़न बयान। सच को नरमी, मोहब्बत और वक़ार के साथ पेश करें ताकि सामे मुदाफ़ियती मिजाज में ना जाए। सबूत और शवाहिद। जब सच हक़ाइक़ पर मबनी हो तो इसके साथ शवाहिद रखें। अफवाहों या क़ियास आराइयों को हकीकत समझा कर बयान न करें। 5, हल के साथ बात करें। गलती या मसले की निशानदेही के साथ साथ उसके हल की तजावीज़ भी दें ताकि सामे मुस्बत अमल की तरफ रहनुमाई पाए। 6, ज़ाती हमियत और सुकूत का तवाज़ुन। बाज़ औक़ात सुनकर खामोशी और बर्दाश्त करना भी बेहतरीन हिकमत होती है, मगर तवील मुद्दत के लिए खामोशी बारन गुना बन जाए तो इजहार ज़रूरी है। समाज तब्दीली में सच की ताकत। तारीख़ बताती है कि बड़े समाजी इनकलाब अक्सर सच्चाइयों की बदौलत ही आए हैं। जब जुल्म, नाइंसाफ़ी या जबर के सच सामने आए तो मुआशरा बेदार हुआ और इस्लाही तहरीकें जन्म लें। इस तरह सच का कटना वक्ती मुश्किलात के बाद बड़े फलाही नताइज दे सकता है, मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब सच बोलने वाले मुअस्सिर अंदाज में मुनज़्ज़म तौर पर और जमहूरी तरीक़ों से आवाज़ उठाएं। जदीद दौर में सच्चाई और इंफॉर्मेशन का चैलेंज। आज के डिजिटल दौर में मालूमात का सैलाब मौजूद है। सच और झूठ के दरमियान तमीज़ मुश्किल हो रही है। फेक न्यूज़, बासित रिपोर्ट्स और गुमराह कुन मालूमात में सच का होना और उसके असरात बदल दिए। आवाज़ माहौल में सच का कटना मुख्तलिफ सूरत इख्तियार करता है। बाज़ औक़ात हकीकत की निशानदेही करने वाला तनकीदी नज़रियात का शिकार होता है या सोशल मीडिया पर तरबिलिंग और बदनामी बर्दाश्त करना पड़ती। क़ियास ने सच्चाई के दिफा के नए तरीक़े मांगे। सहाफ़ती एहतिसाब, हक़ाइक़ जांचने वाली प्लेटफॉर्म्स और मालूमाती शफाफियत के इदारे आजकल बहुत ज़रूरी हो गए हैं। सच का कटना ज़ाती और समाजी फलाह का रास्ता। इख्तितामी तौर पर यह कहा जा सकता है कि सच का कटना वक्ती और तकलीफ दे हो सकता है, मगर ये एक लाजमी अमल है जो ज़ाती और समाजी फलाह के लिए ज़रूरी है। सच वो आईना है जो हमें हकीकत दिखाता है। अगर हम इस आईने से घबराएं और इसे तोड़ दें तो हम अपनी तरक्की का रास्ता बंद कर लेते। आओ अगर हम इसे बर्दाश्त करके अंदरूनी सफाई और इस्लाह करें तो इसका फल देर पा और मीठा होता है। नतीजा सच का कटना एक तल्ख सच है, मगर इसमें ज़िंदगी बदल देने वाली ताकत भी है। ज़रूरी है कि हम सच्चाई के इजहार और कबूलियत के दरमियान एक मुतदिल रास्ता इख्तियार करें। ऐसा रास्ता जिसमें नीयत साफ हो, इजहार का तरीक़ा मोहब्बत और हिकमत से लबरेज हो और कबूलियत इस्लाह की गरज से की जाए। सच को बिला वजह तलवार ना बनाएं, मगर ना ही इसे छुपा करें।
अपनी रूह को बीमार होने दें। अगर हम सच को इज्जत दें और इसे पहुंचाने के तरीक़ कार सीखें तो ये दुनिया बेहतर मुनसिफ और रोशन बन सकती है। हालांकि इस रास्ते में कटने का दर्द ज़रूर आएगा। वो दर्द बहुत सी नई खुशियों और अमन की बुनियाद भी रखता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून का खुलासा निकात की फहरिस्त स्कूल/कॉलेज के तालिब इल्म के लिए सवालात व जवाबात भी तैयार है। तो बताइए किस सूरत में मजीद मदद पसंद करेंगे। सच का कटना इब्तिदाइया। सच एक ऐसा जेवर है जो बातिल के हुजूम में चमकता रहता है, मगर सच अक्सर हमेशा नर्म और मुलायम नहीं होता। इसमें कड़वाहट भी होती है, कांटों जैसी तेज हकीकत भी यही वो कैफियत है जिसे आम जुबान में ई सच का कटना वो कहते हैं। जब सच बोलने सच सुनने पर दिल रंजीदा चोट खाता तकलीफ महसूस करता है। ये तहरीर इसी मौजू पर रोशनी डालती है। सच का मतलब उसका समाजी और इखलाकी मकाम, कटने की वजूहात और सच के साथ रहने के अमली तरीक़े। सच का मफहूम और उसकी वक़ात। सच का बुनियादी मफहूम हकीकत की अक्कासी है, वो बात जो हक़ाइक़ शवाहिद दुरुस्त मुशाहदे पर मबनी हो। दीनी, मुआशरती और फ़लसफ़ियाना मतवन में सच को बहुत अज़मत दी गई है। सदाकत इंसान को बावकार बनाती है और मुआशरे में एतमाद कायम करती है, मगर सच का इजहार हर हालत में आसान है। खुशगवार नाउकड़वा सच सामे के जज्बात को छेद देता है, रिश्तों में दरार डाल देता है या सोशल स्टेटस को खतरे में डाल सकता है। यही वो लम्हा है जब सच कटता महसूस होता है। सच का कटना ज़ाहिरी और बातनी मानी। सच के कटने के दो रुख हैं, ज़ाहिरी बैरूनी और बातिनी दरूनी। ज़ाहिरी कटना वो है जब सच बोलने से दूसरों की तशख़्ख़ुस, इज़्ज़त और मुफादात पर ज़र्ब पड़ती है, जैसे किसी की गलती निशानदेही करना जिससे इसका वक़ार मजरूह हो। बातनी कटना वो अंदरूनी तकलीफ है जो सच सुनने मानने से पैदा होती है। अपने झूठा गलती का एतराफ़ करना ज़हनी अज़ियत का सबब बनता है। दोनों कैफियतें इंसान को चुभती हैं और अक्सर लोग उनसे बचने के लिए या तो सच छुपाते हैं या सच सुनने से आंखें फेर देते हैं। आओ सच और झूठ इंतखाब का इखलाकी मंजर। इंसान रोज़मर्रा में छोटे बड़े इंतखाब करता है। कब सच बोलना है, कब सच को नर्म अंदाज में पेश करना है और कब अपनी हिफाजत और दूसरों की भलाई के लिए हकीकत से कुछ पर्दा डालना है इखलाकी नुक्ताए नज़र से। कुछ फ़लसफ़ी और मजहबी रवायात में सच को मुतलक कदर समझा गया है। हर सूरत में सच्चाई ज़रूरी है, ताहम अमली ज़िंदगी में हालात और नतीज का भी ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी मरीज़ को ऐसी तिब्बी खबर छोटी के हिस्सों में बताई जाती है ताकि वो घबराहट से महफूज रहे। सच की ऐसी पेशकश है जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाती है, न कि झूठ बोलकर किसी को गुमराह करने की नीयत। सच का कटन औजूहात एक खुद शनासी का फुकदान। जो लोग खुद को दुरुस्त कामिल समझते हैं उन्हें हकीकत बताने वाला किसी चुपते हुए कान की मानिंद महसूस होता है। गुरूर को छेद देता है। 2 खौफ नताइज। किसी सच के उपशा से रिश्तों का टूटना, रोजगार का नुकसान, असमाजी रुसवाई का खदशा हो तो लोग सच से घबराते हैं। इस खौफ का नतीजा झूठ खामोशी की शक्ल में निकलता है। 3 एहसास कमजोरी। सच सुनने मानने पर खुद को कमजोर महसूस करना। लोग अक्सर अपने दिफा के लिए हकायक को नज़रअंदाज कर देते हैं। 4 तरबियत और आदत। बाज़ मुआशरों में सच बोलने की आदत कमज़ोर होती है। छुपाना, बड़ा चढ़ा बताना, तारीफ हासिल करने के लिए हकीकत के साथ छेड़छाड़ कर लेना मामूल बन जाता है। 5 गलत फहमी और जज्बाती वाबस्तगी। मोहब्बत, नफरत, हसद और झगड़े की बिना पर भी सच नज़रअंदाज किया जाता है। जज्बात जब अक्ल पर गालिब आ जाएं तो हकीकत पसंदी हो जाती है। सच की कड़वाहट, समाजी और ज़ाती असरात। जब सच का कटना बार होता है तो उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। एतमाद का ज़वाल। जब लोग सच ना सुने या सच ना बोलें तो बाहमी एतमाद ख़त्म हो जाता है। मुआशरती ताल्लुकात कमज़ोर पड़ते हैं और शुकूक व शुबहात बढ़ते हैं। ज़ाती इस्तिराब। सच को दबाए रखने से अंदरूनी कश्मकश बढ़ती है, ज़हनी सुकून नहीं रहता और नाकामी, शर्मिंदगी या अंदरूनी गंदी पैदा होते हैं। नकादाना सोच का फुकदान। सच को स्पष्ट डालने से हकीकी मसाइल पर गौर व फिक्र रुक जाता है। इस्लाही अमल मुतासिर होता है या खल्लाक गिरावट। जब सच बोलने वालों को सज़ा मिलती है या उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो सच्चाई का मेयार नीचा रह जाता है और मुआशरा गैर इखलाकी रवैयों का शिकार हो जाता है। सच बोलने के नताइज और उनसे निमटने के उसूल। सच बोलना हिम्मत तलब काम है। सच बोला जाए तो बाज़ औकात रद्दअमल शदीद होता है, मगर तवील मुद्दत में सच का मुस्बत असर ज़्यादा पायदार होता है। चंद अमली उसूल मुफीद हैं। 1 नियत साफ रखें। सच का मकसद तनकीद हक नहीं बल्कि इस्लाह आगाही।
बेहतरी होना चाहिए कि पाकि रद्द अमल में बहुत फर्क डालती है। 2. लहजा नर्म रखें। सदाकत को नर्म अल्फाज में पेश करना कटने को कम करता है, सख्त अल्फाज रंजिश बढ़ाते हैं, लिहाजा हकीकत को मोहब्बत, हमदर्दी और अदब के साथ बयान करें। 3. मुनासिब वक्त और जगह। बाज़ हक़ाइक़ फौरी तौर पर सामने लाने के बजाय मुनासिब मौका और तन्हा माहौल में शेयर करना बेहतर रहता है। अवाम तनकीद अमूमन ज़ख्म गहरा कर देती है। 4. सबूत और मिसालें। सच साबित करने वाले दलाइल मुशाहदात पेश करें, महज इल्ज़ाम अक़ियास से बात आगे ना बढ़े, हल तजवीज़ करें। सिर्फ मसले की निशानदेही करना काफ़ी नहीं, मुमकिना हल मुतबादिल रास्ता भी बताअस से सामे को नुकसान कम महसूस होगा और बात कबूल करने में आसानी होगी। 6. समाजी हमदर्दी रखें। हकीकत बताते वक्त दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। बाज़ औक़ात सच छोटी मिक़दार में देने से बेहतर कबूलियत मिलती है। सुनने वाला कबूलियत और बर्दाश्त। सच का बोझ सिर्फ बोलने वाले पर नहीं होता, सुनने वाले की इखलाकी जिम्मेदारी भी अहम है। सुनकर गौर व फिक्र, खुद एहतिसाबी और हौसले से रवैया अपनाना चाहिए। चंद तजावीज़। घबराहट के बजाय तहम्मुल। पहले रद्द अमल में दिफाई रवैया तर्क करें। गौर करें कि सच में कितना वज़न है, खुद एहतिसाबी करें। अगर सच आपके बारे में है तो इसमें बेहतरी के लिए इक़दामात करें, बजाय इसके कि फौरी मुखालफत कर सवाल करें, ना कि इल्ज़ाम तरीशु। सच की गहराई जानने के लिए सवालात करें। गुफ्तगू का मकसद समझे मज़रत और इस्लाह। अगर सच दुरुस्त है तो एतराफ़ और इस्लाही कदम उठाएं, ये वक़ार को दोबारा कायम करता है। सच और हमदर्दी तवाज़ुन कायम करना। ज़िंदगी में खुलूस और सदाकत के साथ हमदर्दी का इम्तिज़ाज बहुत ज़रूरी है। सच हमेशा वाज़े और कती नहीं होता, बाज़ सूरतों में नरम सच, जुज़वी सच, मुअद्दिबाना रिलीफ देने वाला सच भी बेहतर असर दिखाता है, मगर ये फर्क ईमान और अखलाक के साथ कायम करना चाहिए ताकि सच की कीमत और वक़ार बरकरार रहे। मिसाली कहानियाँ और हवालाजात। मुख्तसर तारीख़ और अदब में सच के बहुत से मंजरनामे मिलते हैं। किसी बादशाह के सामने दानिश्वर ने हकीकत बताई और बादशाह ने गुस्से में इसे सज़ा दी, मगर बाद में वही बादशाह दानिश की कदर जान कर शर्मिंदा हुआ। किसी रिश्तेदार ने मसीयत छपाई तो घर बर्बाद हुआ। एक उस्ताद ने शागिर्द की कमज़ोरी ज़ाहिर की तो शागिर्द ने मेहनत करके कामयाबी हासिल की। ये कहानियाँ वाज़े करती हैं कि सच की इब्तिदा में जो कटता है वो अक्सर तवील मुद्दत में फ़ायदा बन जाता है। सच का कटना और रूहानी नुक्ताए नज़र। मजहबी और रूहानी तालीमात में सच्चाई को बुलंद मकाम हासिल है। सच ईमान, तक़ू और इखलास की अलामत समझा जाता है। रूहानी राह में सच का सामना बाज़ औक़ात नफ़स के लिए तकलीफ़ दे होता है। अपने नफ़स की कमज़ोरियों, गुरूर, आदात का एतराफ़ रूहानी तरक्की का हिस्सा है। इस एतराफ़ का अमल कड़वा ज़रूर होता है, मगर नतीजा पाकीज़गी, खुदी और अल्लाह के करीब होना होता है। अमली मशवरे। रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए एक खुद से ईमानदारी। रोज़ाना कम अज़ कम चंद लम्हे अंदरूनी जायज़े के लिए निकालें। अपनी गलतियों को तसल्ली मीम करें और उन्हें दुरुस्त करने का मंसूबा बना। लोगों के साथ शफाफियत। अहम रिश्तों में छोटे बड़े मामलात में शफाफ रहने से एतमाद बनता है। 3. आदतन सच बोलने की तरबियत। छोटे मौक़ों पर सच बोलने की मशक करें, ये आपको बड़े सच के कठिन लम्हों के लिए तैयार करता है। 4. सच को मोहब्बत से पेश करें। तर्ज़न बयान तंजीद के बजाय रहनुमाई की शक्ल में सच पहुँचा। दूसरों का नुक्ताए नज़र सुने। कभी कभार सच मुतनाज़ा हो सकता है, दूसरे के ज़ाव नज़र को समझने से हल निकलता है। नज्जा सच का कटना एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई महफूज ना हो। सच बोलने और सुनने दोनों में दर्द शामिल है, मगर यही दर्द अक्सर इस्लाह और तरक्की का मुहर्रिक बनता है। जिंदगी में सच और मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन तलाश करना हर इंसान का फरीज़ा है। सच्चाई को बरकरार रखें, मगर इंसानियत और हमदर्दी को भी फरामोश न करें। सच की तेजी इसी वक्त काबिले बर्दाश्त बन सकती है जब इसके साथ इज्जत, खैर और हल पसंदी शामिल हो। आखिर में कहना बजा होगा कि सच का कटना आर्जी हो सकता है, मगर सच की बुनियाद पर बने हुए रिश्ते और इस्लाहात तवील अलमियाद खुशहाली देती हैं। सच का सामना करें, मगर वो आहिस्तगी, शाइस्तगी और हमदर्दी के साथ करें। कभी सच न सिर्फ कहा जाएगा बल्कि कबूल भी होगा और कटने की जगह शिफा लेगी। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को मखसूस इदनस जवानों के लिए, वालिदैन के लिए तालीमी सेमिनार के मुताबिक ढालकर मुख्तसर तकरीर अपुज़नकीशन के नोटिस भी बना दूँ। सच का कटना अल्फाज में मजमून तारुफ। सच एक ऐसा नूर है
جو انسانی زندگی کو روشنی دیتا اور دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ سچ کی اہمیت صرف اخلاقی حد تک محدود نہیں بلکہ یہ معاشرتی انصاف، اعتماد اور ترقی کی بنیاد بھی ہے۔ مگر کئی مرتبہ حالات، مفادات اور خوف کی وجہ سے سچ کو دبایا، مروڑا اور تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی سچ کا کٹناس مضمون میں ہم سچ کے کٹنے کے معنی، وجوہات، نتائج اور ازالے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ قاری واضح طور پر سمجھے کہ سچ کا کٹنا کیوں خطرناک ہے اور ہم اپنی زندگیوں اور معاشروں میں سچ کو کس طرح بحال رکھ سکتے ہیں۔ سچ کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ سچ سے مراد وہ حقیقت ہے جو وقوع پذیر ہوئی ہو یا جو درست اور حق پر مبنی ہو۔ سچ کا رشتہ علم، انصاف اور امانت سے جڑا ہوتا ہے۔ جب افراد یا ادارے سچ پر قائم ہوتے ہیں تو ان پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، معاملات شفاف بنتے ہیں اور غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سچ کی بنیاد پر قوانین نافذ ہوتے ہیں، فیصلہ جات کیے جاتے ہیں اور انسانی رشتے مضبوط بنتے ہیں۔ سچ کا کٹنا کیا مراد ہے؟ سچ کا کٹنا اس صورتحال کو کہا جا سکتا ہے جب حقیقت کو جان بوجھ کر چھپایا جائے، ململا کر پیش کیا جائے یا اس میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ اصل صورتحال قابل شناخت نہ ہو۔ یہ عمل جانبداری، مفاد پرستی، خوف، بدنامی سے بچنے اور طاقت کے زور پر کیا جا سکتا ہے۔ سچ کو اتنا محض زبان اور جملوں تک محدود نہیں، یہ حقائق کو مسخ کرنے، شواہد کو مٹانے اور سماجی روایات اور تاریخ کو تبدیل کرنے تک پھیلا ہوتا ہے۔ سچ کے کٹنے کی وجوہات، ذاتی مفادات۔ اکثر لوگ گروہ اپنے مفادات کی خاطر حقائق کو جھٹلانے اور چھپانے کا راستہ اپناتے آؤ۔ کاروبار مفادات، سیاسی اقتدار اور ذاتی شہرت بچانے کے لیے سچ کو مسخ کیا جاتا ہے۔ خوف، نتائج۔ سچ بولنے پر مشکلات، سزا اور رد عمل کا خوف لوگوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے حقائق دبائے جاتے آؤ۔ سماجی دباؤ، خوشامد۔ سماجی یا ثقافتی دباؤ، اقتدار کی خوشامد اور تعلقات کے تحفظ کے لیے سچ سے منحرف ہونے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ معلومات کی کم مائگی۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس درست معلومات نہیں ہوتی تو وہ غلطی سے بھی سچ کو بدل دیتے ہیں یا فرضی باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ انتظامی اور حکومتی کنٹرول۔ طاقت رکھنے والے ادارے عوامی رائے، میڈیا اور تاریخ کو کنٹرول کر کے سچ کو مسخ کر دیتے ہیں تاکہ اپنے موقف کو مضبوط کریں۔ سچ کے کٹنے کے نتائج۔ سچ کا کٹنا فردی، سماجی اور قومی سطح پر خطرناک نتائج لاتا ہے۔ اعتماد کا زوال۔ جب سچ بار بار مسخ ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے پر، اداروں پر اعتماد کھو بیٹھتے اور معاشرے میں شک اور بدگمانی بڑھ جاتی ہے۔ انصاف کا فرسودہ ہونا۔ عدالتی اور انتظامی نظام سچ کی بنیاد پر چلتا ہے۔ جب شواہد حقائق چھپائے جائیں تو انصاف مشکوک ہو جاتا ہے اور مظلوم حق سے محروم رہتے ہیں۔ علمی و تعلیمی نقصان۔ تاریخ علمی حقائق کا مسخ نسلوں کو غلط علم اور جھوٹے تصورات دیتا ہے جس کے نتیجے میں علمی ترقی رک جاتی ہے۔ رشتوں میں کشیدگی۔ ذاتی رشتوں میں بھی سچ کے چھپنے سے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ اعتماد ہی رشتوں کی بنیاد ہوتا ہے۔ اخلاقی زوال۔ جب معاشرہ سچ کو اہمیت نہیں دیتا تو اخلاقی معیار کمزور پڑ جاتے ہیں اور دھوکہ دہی، بددیانتی عام ہو سکتی ہے۔ طویل مدتی تباہی۔ سچ کی مسلسل خلاف ورزی آخر کار سماجی معاشی خسارہ اور سیاسی عدم استحکام میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثالی حالتیں جہاں سچ کٹا گیا۔ سچ کے کٹنے کے متعدد عملی مظاہر ہیں جنہیں روزمرہ زندگی سے لے کر تاریخ تک دیکھا جا سکتا ہے۔ چند علامات یہ ہیں۔ کسی واقعے کی رپورٹنگ میں اہم حقائق کا حذف کر دینا، تحقیقی اور طبی رپورٹس میں نتائج کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، تاریخ کے اہم واقعات کی غلط تعبیر اور نظر انداز کرنا، تعلیمی نصاب میں من پسند بیانیاں شامل کرنا اور مخالف شواہد چھپانا، عوامی بیانات اور سیاسی مہمات میں جھوٹی معلومات پھیلا کر رائے بنانا۔ سچ کٹنے کے اخلاقی پہلو۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے سچ پامالی بہت سنگین جرم ہے۔ یہ صرف ایک جھوٹ بولنے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک انسان اور معاشرے کے ضمیر کو کمزور کرنا ہی۔ مذہب اور اخلاقی تعلیمات میں سچ کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سچ گوئی کو ایمان اور کردار کی نشانی کہا جاتا ہے۔ جب ہم سچ کو کم تر سمجھیں تو ہم اپنے باطنی اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ آسان مثال۔ ذاتی زندگی۔ فرض کریں کسی خاندان میں نوجوان نے غلطی کی اور خاندان کے بزرگ اس حقیقت کو چھپا دیں تاکہ خاندان کی عزت برقرار رہے۔ ابتدائی طور پر شاید یہ فیصلہ محفوظ معلوم، مگر وقت کے ساتھ جب وہ سچ سامنے آتا ہے تو اعتماد ٹوٹ جاتا، نوجوان کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ شفافیت کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور غلطیوں سے سیکھنے کا راستہ ہو۔ سماجی مثال۔
मीडिया और खबर रसानी मीडिया का बुनियादी फर्ज हक़ाइक़ को अवाम तक पहुँचाना है। अगर मीडिया किसी खबर में ज़रूरी शवाहिद को हज़फ कर देता है या एक रखबाना रिपोर्ट पेश करता है तो अवाम का फैसला मबनी पर गलत मालूमात होगा। इसका नतीजा सियासी भरम, माशी नुकसान, असमाजी इंतशार की सूरत में निकल सकता है। लिहाजा मीडिया की आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी लाजिम है। तारीख मिसाल हक़ाइक़ का तहरीफ, तारीख की तहरीफ नस्लों को झूठे किस्से और गलत एतमाद देती है। जब किसी वाक़ये को मुनज़्ज़म तरीक़े से छुपाया या तब्दील किया जाता है तो आइंदा नस्लें गलत नज़रियात और तासुबात के साथ परवान चढ़ती हैं। इसका हल मजबूत तारीखी तहकीक, दस्तावेजी शवाहिद की हिफाजत और खिली बहस है। सच के कटने के नफसियाती असरात, सच छुपाने आमस करने वाले और सच से महरूम अफराद दोनों पर नफसियाती असरात मुरतब होते हैं। सच छुपाने वाला शख्स अंदरूनी कश्मकश, शर्मिंदगी और खौफ महसूस करता है, जबकि जिस पर धोखा किया गया हो, जिसे सच से महरूम रखा गया हो, वो बेबसी, गुस्सा और अफसुर्दगी महसूस कर सकता है। तवील मुद्दत में ये असरात एतमाद की कमी और नफसियाती बीमारियों का सबब बन सकते हैं। सच को बचाने और वापस लाने के तरकीब, तालीम और शऊर। तालीमी इदारों में तनकीदी सोच, सच्चाई की कदर और तहकीक की अहमियत को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें हक़ाइक़ की तलाश करें। शफ़ाफ़ इदारे, सरकारी और निजी इदारे शफ़ाफ़ तरीक़ार अपनाएं, रिकॉर्ड्स की हिफाजत करें और छुपाने के बजाय अवामी एहतिसाब को फ़रोग़ दें। सहाफ़ियाना अखलाकियात, मीडिया में प्रोफेशनलिज़म और तहकीक का मेयार बुलंद होना चाहिए। रिपोर्टिंग में शवाहिद और हवालाजात की इशाअत मामूल बननी चाहिए। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात, ऑर्डिनेंसेस, रिपोर्टर्स और मुहक्किकीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए ताकि वो बग़ैर खौफ के हक़ाइक़ बयान कर सके। ज़ाती पड़ताल और जवाबदेही, हर फर्द को अपनी शख्सियत में ईमानदारी को अपनाना चाहिए। गलती होने पर एतराफ़ और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खिली बहस और तनकीद, मुआशरे में हर मौजू पर खिली बहस की हौसला अफजाई हो ताकि मुख्तलिफ ज़ाविये सामने आएँ और हक़ाइक़ खुद ब खुद नुमायाँ हुए। दस्तावेज़ी शवाहिद की हिफाजत, तारीख़ी, तिब्बी और साइंसी रिकॉर्ड की हिफाजत ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में तहरीफ का रास्ता बंद हो। सच और रहम दिली तवाज़ुन की ज़रूरत। ये बात भी काबिल गौर है कि सच गोई का मतलब हर हाल में सादा, बेलतीफ़ा तकलीफ देबिया नून नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात नरमी और हिकमत के साथ सच बताना ज़्यादा मुअस्सिर होता है, यानी सच को काबिल बर्दाश्त और बामकसद अंदाज में पेश करना इंसानी हमदर्दी का तकाज़ा भी हो सकता। हिमगर उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सच को ढका आमस्ख किया जाए, बल्कि अंदाज़न बयान में नरमी बरती जाए जबकि हकीकत बरकरार रहे। अमल रहनुमाई फ़र्द के लिए, जब भी आपके सामने सच आता है तो पहले इसे ठोस शवाहिद से परुके। अगर सच बताना आपके दूसरों के लिए नुकसानदेह महसूस हो तो हिकमत के साथ मरहलावार हकीकत पेश करें, मगर छुपाई ना। गलत का एतराफ़ करें। एतराफ़ ही इस्लाह का पहला कदम है। सच्चाई की हिफाजत के लिए वाज़े रिकॉर्ड रखें और शवाहिद महफूज करें। अमली रहनुमाई, समाज और इदारे के लिए शफाफ पॉलिसीज़ बनाएं। रिकॉर्ड की अवामी रसाई यकीनी बनाएं। अवामी इदारों में खिले ऑडिट और अवामी समाअतों को मामूल बना। तालीम निसाब में तारीख़ और साइंसी तराकार की दुरुस्त नुमाइंदगी लाजिम ना शामिल कर। मुज़ाहमत सच, ये भी जान ले सच के खिल कर सामने आने पर बाज़ लोग गिरोह इसकी मुज़ाहमत करेंगे क्योंकि सच उनके मुफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मुज़ाहमत से निपटने के लिए मुस्तकिल शवाहिद, कानूनी रास्ता और अवामी बेदारी ज़रूरी है। इत्तेहादी और कपास, अगर मुआशरा छोटे छोटे हक़ाइक़ के लिए मिलकर खड़ा हो तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। नतीजा सच का कटना आर्जी फ़ायदा दे सकता है, मगर तवील मुद्दत में ये नुकसानदेह और ख़तरनाक है। सच ही वो बुनियाद है जिस पर अदल, तरक्की और इंसानी एतमाद कायम रहता है। इसलिए फ़र्द और मुआशरा दोनों की जिम्मेदारी है कि सच की हिफाजत करें, इसकी कदर बढ़ाएं और ऐसी रवायात कायम करें जो सच बोलने को आसान बनाएं। जहां ज़रूरत हो नरमी और हिकमत के साथ सच बयान किया जाए, मगर कभी भी हकीकत को मस्ख़ करने की इजाज़त ना दी जाए। सच की बहाली ही वो रास्ता है जो एक सेहतमंद, बाशऊर और मुनसिफ मुआशरा तामीर करता। हिदावत अमल, आखिर में एक छोटा लेकिन मुअस्सिर पैगाम। हर दिन अपनी ज़बान और अमल में सच की कदर बढ़ाएं। अगर आपने कभी सच छुपाया है तो आज एतराफ़ कीजिए। अगर आपने कभी किसी को सच बताने से रोका है तो इस रुकावट को हटाइए। छोटे फैसले ही बड़े समाजी तब्दीलियों का बाइस बनते हैं। सच का दिफा करें, सच की तलकीन करें और आएं एक ऐसे मुआशरे की तामीर करें जहां हकीकत का कटना नहीं बल्कि हकीकत की रौनक हो। अगर आप चाहें तो मैं इसी मज़मून का खुलासा
نکات کی شکل میں خاکہ اس مضمون کو 1500 یا 3000 الفاظ میں دوبارہ ترتیب کر دیں۔